but it's very important to again learn a shortcut. ठीक है? Next thing, moving forward, है ना? Now let us learn something new. Let us put some data out so that you can learn it in a better way. ठीक है? ये पूरा एक shell आ गया. Now I've told you how to rename yourself, है ना? You can just rename table for marks. ठीक है? I just renamed it table for marks. अब one by one समझते हैं. Say for example, I've put a serial number. Many times you need to put a 1, 2, 3, 4 in a serial number out. Now this is something which many of you don't know. Many of you end up doing a mistake and wasting a lot of time. Say for example, I ask you to put a serial number 1 to 100. What is something which you'll do? Someone will do 1, 2, 3, 4, and he's going to be typing till 100. No. Right? Or someone will, what he or she is going to be doing, right? He or she is going to be taking this and is going to be stretching up in this way. That is also one of the way to do it out. Okay? But you can also use some formulas, right? Which is there. You can also use some formulas which is there. You can just press equal to this plus 1. Okay? And you can just then select and you can see the numbers which are appearing in the row. दिख रहा है कितने रो तक ले जाना है? तो say for example मेरे को 100 रो तक ले जाना है. Of course यहाँ पे आपको आ गया एकदम 1 second में you can just do it out. Right? वो आ गया. I think 101 हो गया. So sorry. First वाला is stepped out. So 100 rows I have just able to put it out in this very simple manner. Also many of them also use है ना ऐसा plus icon also +1 इससे भी होता है equal to से भी होता है. It's your choice how you want to put it out, but this is something which you can use easily to do and put the thing है ना. So you can just put it out by equal to formula. Now say for example I want to see the formulas which are put in or applied है ना. मुझे देखना है कि formulas कहाँ लगे हुए हैं, right? I want to see which all places I have put the formula out. Now where you can see it out, if you see control and the left arrow key with this, मतलब control and this button, and if you could see this out, this button in your Excel, 1 के बाजू में दिखेगा on the left hand side, right? I don't know what to pronounce this. The time you'll press this control and this, you'll be able to see कि formula कहाँ लगे हुए. This is something which helps us to know that which all places we have applied the formulas which are there. Can you see this out? दिख रहा है पूरा formula कहाँ लगा हुआ है? Right? Can you see this out? Which all places I have put the formula out? You can just easily see through this. So control and 1 के left में जो है उसके आप press करोगे तो you'll be able to see this out. Now let me remove this. Let me put only the 5 serial numbers as of now, so that we can understand in a better way. Okay. Now let me put some name of a students. Okay. I'll just take it simple: A, B, C, D, and E. Okay. I'll just put the name out. Next thing, I just wanted to put the marks of a student. And say, for example, I'm putting the marks of accounts, economics, and maths. Okay. I'm just taking the marks which is there. There are a lot of magic and things you are going to be learning now. Say, for example, student A have got marks in accounts called as 60. Now, I'm just putting the marks out. Say, for example, 70, 55, 44, 44, 33. Now, what is going to be happening? The time I'm done with this, it's going to be taking, again, I need to move and shift to the another cell. One good way which you can do is, you can just select the entire cell, type the marks which are there, right? You can parallelly type the marks which are there, and then you can just move to the different section. वो उसी cell में घूमता रहेगा, जो selected है उसी में घूमता रहेगा. Now, say for example, if teacher is typing some mark of some student, अच्छा, student have scored 55 marks in eco. Student B have scored 77 marks in maths. A student A have scored 77 marks in maths. So you can just use this and you can keep on pressing tab. The time I want to move to another cell, you can just press the tab out, which is there, right? And if you come back, shift tab is something which you need to do. आगे बढ़ना है तो tab, पीछे आना है तो shift tab. तो पीछे आ जाएगा. ठीक है? So that way you can just put some marks out, which is there. है ना? यहाँ पे आप इस तरीके से marks डाल सकते हो. अब मुझे है ना थोड़ा सा randomly marks चाहिए students के. I just want to put some random marks of the students out. Okay. Now many of you will feel that कि sir हमको थोड़ा time दो. Definitely I'll request you to watch it out and then do it, because it's gonna be saving your time. And don't worry, I'll give you the sheet and the things which I've taught you in today's class, so that you can just look and practice it out. Because क्या है कि the time you'll do it on your own, तभी वो आपको दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा. ठीक है? So that is something which you need to do. Now say for example, I just want to put a random marks. And ऐसे randomly marks तो नहीं मिलते हैं, ये तो आपके efforts पे dependent होते हैं. But I just want to put a random marks. So what I'll do, I'll just put rand between
say for example 30 to 100 के बीच में कोई भी random marks दे दे. What is rand between? It's a function. देखो whenever you put some function out, है ना, यहाँ पे देखो दिखाएगा, it will show the purpose. Returns a random number between a number you specify. I just want a cell to take us any of the random number. Okay. Now here the time will press equal to, है ना, बहुत सारे जादू हो जाते हैं. Say for example, the time will write A, you'll write B, you'll write C, you'll write D. A lot of functions you'll be able to find it out. Of course, it's very important to learn the basic and important functions which you are going to be using in a everyday's life. One of the important function which is there is rand between. That is something which I use. So say for example, I want any of the random number between 30 to 100. Okay. The time I'll press enter, है ना, ये अपने आप number आ गया. And the best part is that the time I press F4, sorry, हाँ, right? The time I press F4, I don't. अच्छा, so sorry, मैंने macro set F4 पे. ठीक है. Rand between. Again, I'll put 30 to 100, right? And the time I'll copy this and I'll just put it out in a multiple cells, right? You know how to copy it out? Very simple. You just press Control C, right? The time will press Control C, and you just, if you want to paste it out, Control V. And if you want to cut something out, you just need to press Control X and you just paste it out in another cell. Now, what is happening? Please understand. This is called as a rand between function. The time you'll do any of the function out, वो अपने आप चेंज होता रहेगा. देखिए, अगर देखो मैं इसको इधर उठा के इधर रख दिया, ये कॉपी करके इधर रख दिया, वो चेंज होता रहेगा. कुछ भी आप लिखोगे एक्सेल फाइल में, इस शीट में कुछ भी करोगे, ये नंबर हिलता रहेगा. Right? That is something which is there. Many after your time when we are going to be performing some statistics का function, जब हमको ना बड़ा डेटा पे कुछ एनालिसिस करना होता है ना, तो दैट इज समथिंग व्हिच विल यूज. बट अगेन आई वांट टू फ्रीज दिस आउट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नंबर तो चेंज होता जा रहा है. कुछ भी करता हूँ एक्सेल में, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल मार्क्स, है ना, जैसे लिखा, अरे क्या नाटक हो रहा है, बच्चे के मार्क्स बदलते जा रहे हैं, बच्चा गोली मार देगा मेरे को ऐसे में, है ना. मैं तो अभी रैंडमली लिखा हूँ, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसके हर सेकंड में मार्क्स चेंज होते जा रहे हैं. नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. आई जस्ट वांट टू एंश्योर दैट दिस मार्क्स आर फ्रीज्ड or the function should not change. So what is something I need to do? I just need to do it the paste special. So what I'll do? I'll just select this out. How to select it out? देखो मैंने कैसे select किया, है ना, shift downward, है ना, shift control downward, तो नीचे का पूरा select कर लिया. shift control right hand side का पूरा select कर लिया. shift control downward, नीचे का select कर लिया. shift control right, इधर का select कर लिया. Now please understand, if I'm here and if I press control A, it will select an entire table out. वो एक स्क्वायर बना लेता है टेबल का. ठीक है. अब देखो, जैसे मैं इधर स्पेस डाल देता हूं एंड नाउ आई प्रेस कंट्रोल ए, तो मार्क्स नहीं लेगा बिकॉज वो चिपका हुआ नहीं है. आई एम गेटिंग इट आउट. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ टेबल नाउ. बट टाइम आई रिमूव दिस स्पेस आउट, आई प्रेस कंट्रोल ए, तो पूरा टेबल सिलेक्ट कर देगा बिकॉज उसके आसपास का जो भी है विच इज फॉलोइंग इनटू अ टेबल, इट विल डू इट आउट. ओके. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अगेन आई हैव सिलेक्टेड आउट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट. I want to ensure that these numbers are pasted. So what I'll do, I'll just do Control C, and here if you could see this out, I can do paste special, right? You can just press it out on a paste, right? वो paste हो जाएगा. But again देखो, paste करोगे तो होगा नहीं वो, because ये formula हटाना है हमको, तो उसको paste special करना पड़ेगा हमको, है ना. तो Control C, Alt H, V, and here you need to see paste values. मुझे उसको value में convert कर देना है. राइट. पेस्ट में क्या होगा, नॉर्मल पेस्ट विच वी ऑलरेडी डू. कॉपी, मेरा कॉपी करना है इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दिस इज कॉपी पेस्ट, है ना. बट आई एम ट्राइंग टू इंश्योर दैट दिस आर द नंबर्स शुड नॉट मूव. व्हाट इज समथिंग आई नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू कॉपी. द टाइम यू कॉपी इट आउट, ये पेस्ट फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा. अब पेस्ट में आई जस्ट नीड टू इंश्योर दैट दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर नंबर्स, प्रॉपर वैल्यूज. टाइम आई डू इट आउट. देखो फॉर्मूला हट गया. चेक करना है फॉर्मूला है कि नहीं. आई हैव टोल्ड यू आउट, कंट्रोल और 1 के बाजू वाला की हट गया. देखो हार्ट पंच आ गया. गुड, सी दिस आउट, और फॉर्मूला सिर्फ यहीं पे है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट विच यू अगेन नीड टू अंडरस्टैंड, टोटल, है ना, कि मुझे किसी भी चीज का टोटल लेना है. एवरीवन नोज, और दिस इज वेरी सिंपल. यू कैन जस्ट पुट सम फंक्शन इक्वल टू सम फंक्शन. यू कैन, इफ यू वांट टू गो हियर, प्रेस टैब एंड यू कैन टेक अ सम ऑफ दिस 3. ठीक है, डन, सम आ गया. Now other ways to take a sum is very interesting. Press Alt and equal to. This is something which is called as a shortcut. The time you press Alt equal to, it will take a sum. Second way. First way which I have told you, equal to sum. Then press tab.
go to the cells where you want to take a sum, close the bracket, press enter. And it will again take some time. Again you want to save a time, alt equal to, the time will do alt equal to, फट से अपने आप ले लेगा आसपास के जो भी numbers रहेंगे, and then press enter. Okay. Third thing out, right here on the top right hand corner, if you could see, right here also you'll be able to find out some sum functions. Right, काफी बार आपको इधर sum functions दिख जाएंगे. You can just go here and press on the sum which is there. Right, वो sum function इधर से ले रहा है, मेरे को इधर से move करना है. I can just put it out, sum ले लिया. Right, there are multiple ways to do the same function out. Multiple ways. अब देखो, जो मैंने फंक्शन ऊपर परफॉर्म किया, whatever functions I have done at the top, I want to ensure that the same function is repeated below. What is something which you can do? Right, if you want to repeat it some function out, you just need to press Control D D D D D. है ना? You can just press Control D D D D D. ठीक है? तो अगर मेरे को मान लो इस sum को नीचे खींचना था, देखो very simple. I put the formula out. I need to ensure that this formula is repeated to all the cells which is there. Press Control D, Control D, Control D, Control D. अब आ गया. But again, it's gonna be wasting a time अगर मैं एक एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बेस्ट वे, राइट, मैंने क्या किया, देखो यहां से मैं गया इधर, इधर से गया नीचे, इधर से गया ऊपर, इधर से प्रेस कर दिया Control D. होता है ना, शॉर्टकट रास्ता ढूंढना पड़ता है, राइट, तो मैंने शॉर्टकट रास्ता ढूंढा वहां जाने का. कैसे ढूंढा, देखो सिंपल, यहाँ पे था मैं, है ना. अब मान लो ये बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे पूरा डेटा डला हुआ है वहां से जाऊंगा लेफ्ट, उसको प्रेस करूंगा कंट्रोल डाउनवर्ड एरो, फिर जाऊंगा राइट और प्रेस जाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट अप और प्रेस कर दूंगा Control D. समझ गए? इट्स लाइक फाइंडिंग आउट अ शॉर्टकट वे, है ना, जो घर जाने का छोटा रास्ता है वहां से जाते हैं ना हम, बस वैसे ही है. ठीक है, तो दैट वे आई पुट द टेबल आउट, है ना. अब नेक्स्ट यहाँ पे मुझे डालना है एवरेज मार्क्स. ठीक है, एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चे के. फिर मुझे डालना है से फॉर एग्जांपल मीडियन. पढ़े होंगे ये सब आपने 10th 11th में, है ना, मीडियन. देन आई अगेन वांट टू पुट इट आउट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज डाल देते हैं, एंड रिजल्ट. ठीक है, ये सब चीजें मैंने डालनी. अब नेक्स्ट चीज, राइट, इसके बाद ऑफ कोर्स आपने डेटा तो डाल दिया, बट डेटा अच्छा कब दिखेगा, जब उस पर लिपस्टिक लगेगी. लिपस्टिक मतलब ऑफ कोर्स यू विल पुट सम फॉर्मेटिंग एंड पुट इट इन अ बेटर वे. ठीक है, राइट, दैट इज व्हाट आई कॉल लिपस्टिक. मेरा मैनेजर भी यही बोलता था, थोड़ा सा डेटा को सजा के लेके आओ, अच्छे से लेके आओ, नहीं तो फिर वो मजा नहीं आता ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट आउट इन अ बेटर वे. तो अगेन देखो, मेरे को अब टेबल डालना है, तो अगेन यू कैन डू कंट्रोल ए सिलेक्ट करोगे तो पूरा ले लेगा. बट अब देखो एक चीज, ये जो मार्क्स है वो तीनों का है ना, ये जो मार्क्स है तीनों का है. आई वांट टू मर्ज दिस आउट. हाउ यू कैन मर्ज इट, इफ यू कुड सी हियर, यहाँ पे देखो आपको मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है, राइट. तो व्हाट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू, Alt H MC, दैट इज वन ऑफ द वे टू डू इट आउट. कैसे किया देखो, अगर याद नहीं होता ना कैसे याद करना, मैं बताता हूँ फॉर्मूलाज. ऑल्ट प्रेस करने का, मेरे को पता है मर्ज होम टैब पे, फिर H प्रेस करने का होम टैब पे जाने के लिए. अब यहाँ पे मर्ज दिख रहा है, यहाँ पे M प्रेस करने का. अब क्या बोल रहे हैं, C में क्या बोल रहा है, सेंटर पे लेके आना है, राइट, अक्रॉस में इधर ले जाएगा, है ना. अनमर्ज करना है तो U पे क्लिक करना है. ठीक है, तो मैं इसको पूरे में मर्ज करना है. जैसे यहाँ से आप जाओगे और इस पे क्लिक करोगे, दैट वे यू विल डू इट आउट. अगेन यू विल वेस्ट योर टाइम. आई विल रिकमेंड सिलेक्ट इट आउट, Alt H MC, एकदम खट 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 खट. एक्सेल को फील होना चाहिए कि मेरा जो यूजर है ना वो मेरे से तेज काम कर रहा है, तब मजा आता है एक्सेल सीखने का. आप समझ रहे हो, एक्सेल को घबरा जाना चाहिए, घबरा जाएगा एकदम से थोड़ी देर बाद. अभी मैं दिखाऊंगा, बाय द एंड ऑफ क्लास एक्सेल विल स्टार्ट वरिंग अबाउट कि भाई तू आराम से चला, मैं इतना तेज काम कर नहीं पा रहा हूँ, तब मजा आता है. आई पे गेटिंग इट. ठीक है, अब इसको डाल दिया. आई वांट टू पुट सम बॉर्डर्स आउट, थोड़ा सा बॉर्डर डाल देते हैं, सुंदर लगाना चाहिए. यू कैन अगेन सी हियर द बॉर्डर ऑप्शन, राइट. यहाँ पे देखो बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स मतलब पूरे पे ले लेगा, नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, मल्टीपल बॉर्डर्स व्हिच आर देयर. तो से फॉर एग्जांपल मैंने पूरे को सिलेक्ट किया. अब देखो मैंने, याद है मेरे को ऑल बॉर्डर का तो रोजी रोटी है मेरा, आई जस्ट नीड मेनी अ टाइम्स इन अ डे. तो व्हाट आई विल डू, आई हैव जस्ट पुट इट ऑन अ माय रिबन आउट, क्विक एक्सेस टूल बार. आई विल प्रेस Alt 2, खत्म. क्या किया था, Alt 2. नहीं तो फिर यहाँ पे बॉर्डर डालना होता तो Alt H B, फिर यहाँ पे ढूंढता कौन सा है, फिर A. समय खराब हो रहा है ना. अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो क्या करने का, चीटिंग करने का ना. चीटिंग कैसे करते हैं, ऊपर डाल देने का, सिंपल. दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू. ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया. अब मेरे को कलर लगाना है तो यहाँ से भी लगा सकता हूँ, या तो फिर Alt 1, है ना. अब जो कलर सिलेक्ट करना है, देखो कलर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जस्ट यू कैन मूव इट आउट, जस्ट डू इट.
बोल्ड करना है तो यू कैन जस्ट डू इट आउट बाय कंट्रोल बी, राइट। और यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखो देखा यहाँ पे कंट्रोल बी, होम टैब पे जाके। तो होम टैब के कुछ फंक्शंस हमने सीख लिए। सबसे पहला, दिस इज समथिंग से फॉर एग्जांपल द फॉन्ट, यू वांट टू चेंज अ फॉन्ट यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू चेंज अ फॉन्ट साइज यू कैन डू इट, इंक्रीज डिक्रीज, राइट। ये हमारे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो ये हमको क्या कहते हैं, फिल कलर, कोई सेल के अंदर कलर फिल करना है तो वो ये बॉर्डर विच यू हैव लर्न, अंडरलाइन, इटैलिक एंड बोल्ड, सिंपल। ये फंक्शंस हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस पे और डिटेल पे आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, बट यहां तक कि आप सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे एवरेज मार्क्स डालना है, जस्ट वांट टू पुट अ एवरेज मार्क्स आउट, व्हाट इज समथिंग व्हिच आई विल डू, अगेन आई विल पुट द फार्मूला फॉर एवरेज हियर, आई विल प्रेस टैब एंड अब मुझे एवरेज किस चीज के लिए, इन तीनों का चाहिए, एंड आफ्टर दैट इज डन आई विल क्लोज द ब्रैकेट आउट, आई विल गेट द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस कैंडिडेट, है ना। एवरेज मार्क आ गए इस कैंडिडेट के, है ना, एवरेज मार्क्स आ गए। इफ यू कुड सी दिस आउट, दिस इज द एवरेज मार्क ऑफ अ कैंडिडेट। ऐसे गुस्से से मत देखो, मेरे मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एवरेज मार्क ऑफ सम अनदर कैंडिडेट। नाउ अब यहाँ पे देखो कैसे एकदम अनइवन आ रहा है, गंदा गंदा लग रहा है ना, 92.666777, किसी का 71 आया, किसी का 60.333333 आ गया और किसी का 55 आया, बहुत गंदा लग रहा है। हाउ टू एंश्योर दैट दिस इज गोना बी इन अ प्रॉपर वे, राइट। तो देखो यहाँ पे इफ यू कुड सी दिस आउट, यहाँ पे आप इसको नंबर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखा, यहाँ पे जाके आपने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो जनरल में था, देखो अभी यहाँ पे जनरल में ना क्या लिखा है, जनरल में देखो नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, that I will convert it to number, it अच्छे अपने आप अच्छे से चला जाएगा। Okay, now I'll tell you one of the magic which I've done. The time you press this number out, ऐसे एक नंबर आ गया और इसको मुझे ना कॉमा करके प्रॉपरली अलाइन करना है। मैंने मैक्रो सेट कर दिया, देखो एकदम से मैक्रो प्रेस किया, ऑटोमेटिकली वो कॉमा लग के प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गया। जैसे कि अगर आप खुद से करते हो कैसा होता है, देखो ये नंबर लिखा है एंड आई आस्क यू टू पुट अ कॉमा, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ से कॉमा डालोगे, है ना, ये कॉमा डालोगे, अब कॉमा डालोगे तो 2 जीरो आएगा, फिर ये जीरो को हटाओगे यहाँ से, है ना, दैट इज समथिंग इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने क्या किया, मैक्रो सेट कर दिया भाई, आई हैव ट्राइड टू सेट द मैक्रो व्हिच इज देयर। अभी तो इसमें आ गया, ऑलरेडी वी हैव डन पुट द फॉर्मूला आउट, यहाँ पे देखो मैक्रो सेट कर दिया। अगर आपको अगेन फॉर्मूले से करना है, अल्ट आप करोगे, अल्ट एच, फिर आप देखोगे के पे कॉमा है तो कॉमा प्रेस किया, देन यू विल डू अगेन अल्ट एच, देन यू विल प्रेस 9, अल्ट एच 9, देखो कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लग गया। मैं उसी चीज को 1 सेकंड में सीखेंगे, विच इज मैंने अपना मैक्रो रन कर दिया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो अपने आप पूरा कॉमा हटा के सब कुछ ठीक कर दिया। आई टीच यू आउट हाउ टू पुट द मैक्रोस आउट, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोना बी लर्निंग इन अपकमिंग क्लासेस, ठीक है। इसको हटाना है तो कैन जस्ट प्रेस डिलीट और नो दैट इज देयर अगेन। नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ आई वांट टू पुट अ मैक्रो, कैसे प्रेस किया, मैक्रो कैसे प्रेस नहीं किया बेटा, मैक्रो का कुछ हमने रूल्स डिफाइन किए हैं एंड आई हैव जस्ट प्रेस दोस रूल्स आउट एंड आफ्टर दैट इज डन, इट हैज रन इट, ठीक है। नाउ से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मीडियन डालना है तो आई विल जस्ट सिलेक्ट द मीडियन, नाउ आई विल पुट द मीडियन आउट, यहाँ पे मेरा मीडियन आ गया। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीडियन। मीडियन इज समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न, इज द मिडिल वैल्यू। तो देखो तीनों में सबसे मिडिल वे कौन आ रहा है, इफ यू अरेंज इट, राइट, 79 99 100 सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो, राइट, तो आपका मीडियन आ गया 99, ठीक है। नाउ एक चीज मैं बताऊं, दिस इज समथिंग व्हिच लॉट ऑफ कंपनीज एंड कंपनीज ड्यूरिंग अ प्लेसमेंट डू, बुरा मत मानना, सत्य वचन है। नाउ से फॉर एग्जांपल जादू दिखाता हूं, रेंट बिटवीन, थोड़ा सा आप नया चीज सीख रहे हो। से फॉर एग्जांपल some companies say or some institutes say the average salary of our candidate is, right, or generally the package of a candidate lies between, है ना, they say that 5 लाख से 15 लाख, है ना, put the proper zeros looks like, हाँ। तो मैं बहुत सारा डेटा ले रहा हूँ जानबूझ के, आई एम जस्ट टेकिंग द डेटा ऑफ मोर पीपल आउट, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू सी कि मैंने कितने डेटा सिलेक्ट किए और हाउ मेनी नंबर्स आई हैव पुट इट आउट, यहाँ पे देखो, देखो नीचे दिख रहा है, इफ यू कुड सी काउंट, hello, if you could see count in sum and you can see the average, ये क्या खुल गया, हाँ। एक सेकंड दो, ये क्या लोड हो रहा है भाई मेरे इसमें, अरे हट, बंद हो जा भाई, बंद हो जा, कुछ तो आ गया था, सो सॉरी। इफ यू कुड सी इट आउट यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इफ यू कुड सी, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा है सम काउंट एंड एवरेज दिख रहा है, तो दैट इज आल्सो व्हिच इज गोना बी यूजफुल टू यू मेनी अ टाइम। सबसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी और इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हमारा
This is a salary of a candidate which is there. Just say taking a demo, मैंने यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैंडिडेट नंबर, है ना, कैंडिडेट नंबर 1 से लेके मैं डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। देखो कैसे मैं फटफट डाल रहा हूँ, तो पूरे नंबरिंग डाल दिया। अब इसको मैं पेज स्पेशल कर रहा हूँ, कंट्रोल सी अल्ट एच वी, खत्म, पेज स्पेशल, पुट अ कॉमा आउट, दिस इज अ सैलरी ऑफ अ कैंडिडेट। ठीक है, अब क्या होता है, कंपनीज कैसे प्रेजेंट करती है डेटा, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन सिंस मोस्ट ऑफ योर फाइनेंस गाइस। तो कंपनी बोलेगी एवरेज पैकेज ऑफर्ड वाज 9,82,000। आपको लगेगा गजब यार, लोगों की सैलरी 9 लाख रुपए की मिलती है एवरेज, मोटा मोटी, आप बड़े खुश हो जाओगे। ठीक है, और फिर कंपनी बोलेगी मैक्सिमम सैलरी ऑफर्ड, है ना, मैक्सिमम का फॉर्मूला देख लेंगे, वाज ऑफर्ड 14,88,000। आपको लगेगा गजब, मैक्सिमम सैलरी भी 14 लाख की है। प्लीज अंडरस्टैंड, नो वन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ मिडिल वैल्यू, है ना। ज्यादातर लोग तो बीच में रहते हैं। आई होप यू हैव सीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट मीडियन, व्हाट इज द मीडियन सैलरी, व्हाट इज द मिडिल वैल्यू, राइट। मिडिल वैल्यू यहाँ पे आपका 10 लाख आ रहा है, but again I can just bring it out. If you take a larger sample size, many a times what happens with most of the companies, median will lie below. Just I'm showing you one small example, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 3 बच्चे हैं, है ना, 3 बच्चे क्या, ए बी और सी, है ना। एक का 25 लाख का पैकेज लगा, ठीक है, एक का पैकेज लगा 10 लाख का, ठीक है, और एक का पैकेज लगा 5 लाख का। ठीक है, अब कंपनीज इसी डेटा को कैसे प्रेजेंट करेगी, देखो ध्यान से। कंपनीज विल से दैट the average salary which our institute offer is 13,33,000, है ना। एवरेज सैलरी बोलेगी 13,33,000 और बोलेगी हाईएस्ट सैलरी, दिस इज आवर एवरेज सैलरी एंड दिस इज, दे आर सेइंग दैट हाईएस्ट सैलरी इज 25 लाख। अरे भाई, ये तो डेटा आप गलत दिखा रहे हो ना, आई पे गेटिंग इट, व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज भाई एक बच्चे के ज्यादा लगने की वजह से एवरेज ज्यादा आ रहा है। But if you see actual में what is median, right? Median is going to be representing me a middle value कि भाई देख on and मोटा मोटी एक average candidate का 10 लाख का पैकेज लग रहा है। So that is why it's very important to understand the concept of median, which a lot of you don't understand, and this is how a lot of companies will make you fool. कहीं पे भी डेटा देख लेना, मैं हमेशा लिख के देता हूँ, कहीं पे भी देख लेना, कोई भी इंस्टीट्यूट का ब्रोशर या किसी का भी ब्रोशर में, यू जस्ट गो एंड सी इट आउट, वो ये दो ही चीज दिखाते हैं, कोई ये नहीं दिखाता है, कोई मीडियन नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको पता है जब मीडियन दिखाएंगे तो सच्चाई बाहर निकलेगी। आई बी गेटिंग व्हाई, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फाइनेंस गाइस टू अंडरस्टैंड एंड फील द नंबर्स आउट, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट ट्राई टू टेक द मीडियन आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट परसेंटेज निकालना है। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट आउट। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, ऑफ कोर्स अज्यूमिंग दैट ईच पेपर इज ऑफ 300, तो डिवाइडेड बाय 300, तो आपको ये आ गया। इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, देखो यहाँ पे परसेंटेज का बिंदु दिख रहा है, right? That is something which you can press, or you can use a formula alt h p। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है इसको सब में, I'll just drag it down, तो सबके परसेंटेज निकल गए। Could see this out, परसेंटेज निकल गया। ठीक है, अब देखो होम फंक्शन और तो अच्छे से सीखते हैं, लेट अस लर्न दिस आउट। मतलब मुझे इसको ना और बढ़िया से प्रेजेंट करना है, आई जस्ट वांट टू शोकेस दिस मार्क्स इन अ बेटर वे। So what is one thing which you can do? You can just go to conditional formatting, and here if you could see this out, यहाँ पे आपको बहुत सारे rules मिल जाएंगे which you can define. So say for example, I just want to put tower, मुझे टावर डालना है। देखो अब बढ़िया सा टावर आ गया। 100 मतलब फुल डंडी, और 0 डाल देते हैं इसके मार्क्स, तो 0 मतलब अगेन 1 डंडी। That way you will be able to present this data out, है ना। Many times you need to present it right in a better way, so that is something which you need to do. Okay, in a similar way you can just put multiple things out. Say for example, you can just go to again conditional formatting, you can just put the icons like this, है ना, you can just put the icons like this, multiple icons, you will be able to put it out. You can also put some color bars which is there, right? You can just put some color bars which is again there. Say for example मैंने डाला, है ना, तो ये 100 हो गया, तो 100 पे यहाँ पे ले लिया, फुल दिखा रहा है, और कम है तो say for example if it is 0, तो again show nothing. Yeah, so it's all about how you present it out. So why it is important? Say for example, if you go to many business functions of finance, right? Many times you are making a presentation, so you need to ensure that your data is presented in a better way. Okay, so that is something which is there. If you want to clear this, right, you can just clear from a selected cell or entire sheet.
say for example I just want to remove out from selected cell, I just remove. ठीक है तो यहाँ पे आ गया मेरा क्या कहते हैं, this is something which is I have created. Next thing very important, right? Based on this again I need to define a result, right? मुझे result वगैरह define करना है where I can use the if function. But if function मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा, right? I'll just teach it in a while. But I want you to use some of the basic functions whatever I've taught you till now, है ना? जो आपको फंक्शन सिखा दिए हैं, I just want you to please take a pause and do it out so that at least you do not forget it. And जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, ओ हेलो, आप ही को बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग वालों, है ना? पॉज करो and whatever I've taught you till now, I would request you to please try it out because that is something which is going to be helping you. मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या सिखाया है एक बार, so that you can just recall it. एकदम फटाफट बता देता हूँ. नया शीट आपको पूरा नया टैब ओपन करना है, कंट्रोल एन, right? If you want to open a new sheet which is there, shift F11, right? Want to delete it out, alt L कंट्रोल Z से आप अगेन बैकवर्ड जाओगे, कंट्रोल Y से फॉरवर्ड जाओगे, शिफ्ट 11 बता दिया. आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कस्टमाइज दिस. देन आई हैव टोल्ड यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ होम टैब. से थोड़े थोड़े हमने डिटेल्स सीखे होम टैब के. Then you can put some of the things in a quick access toolbar. You want to move control left, control right. That is something which I've told you. I've told you about the proofing option, file, more, options, proofing. है ना, यहाँ पे आपको proofing के बारे में बताया, यहाँ पे auto correct. ये चीज हमने एक बढ़िया सा function सीखा. Then I told you how to write something on a cell equal to, if you want to write it out, है ना, some formulas 23 plus 22 आ जाएगा in that way. If you want to write something below, तो ऑल्ट एंटर आप प्रेस करोगे उसी सेल में, तो से फॉर एग्जांपल इक्वल टू शिवम, या इक्वल टू के बिना भी आप लिख सकते हो शिवम, तो उसके नीचे लिखना है तो ऑल्ट एंटर. मैंने लिखा था मुकेश, तो मुकेश भाई का नाम आ गया यहाँ पे, मुकेश भाई चेहरे पे स्माइल डाल ले. फिर मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स व्हिच आर देयर, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव लर्न. सीरियल नंबर कैसे डालना है, इक्वल टू 1, है ना, इस पे और ऐड करना है तो प्लस डाल के आप कर सकते हो, +1 करके. फॉर्मूलाज देखना है तो मैंने बताया था कंट्रोल और उसके बाजू वाला बटन, 1 के लेफ्ट वाला बटन, यू कैन जस्ट पुट इट आउट. ठीक है. फिर मैंने कुछ बेसिक फंक्शन सिखाए, राइट? टोटल का फंक्शन ऑल्ट इक्वल टू सम से आ जाता है टोटल. मीडियन का इंपॉर्टेंस बताया है, परसेंटेज कैसे निकालना वो बताया है. कॉमा बेसिक सीख लिए, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिए, नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख लिए. देन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मर्ज द सेल, राइट? वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट मर्ज द सेल एज वेल. और फिर इसके साथ साथ हमने सीखा कि किसी भी चीज को हम फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग कैसे करते हैं, बट वो थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे. ठीक है. तो आई विल गिव यू टाइम, और जो रिकॉर्डिंग में है भैया पॉज करके देखें,